Hi guys, good evening, good afternoon, good morning. Welcome to the class. My name is Naren Kumar, and this is our wonderful channel Guidely. I hope you are preparing well and you are safe and fine. And this is the series, okay, English vocabulary. So in today is the first day in this series. I'm going to conduct 30 to 50 sessions, and I'm going to discuss the most frequently used words. What does that mean? Most frequently मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाले means every writer, every columnist in or every author, ठीक है, जो नोवेल लिखते हैं या फिर न्यूज़पेपर लिखते हैं उसमें ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. हमारा एग्जामिनर भी इन वर्ड्स को बहुत प्रेफर करता है. Fill in the blanks, close test, antonym, synonym, spelling, reading comprehension, close test, everything. All right. So follow this series completely, and you will learn at least 500 most frequently used words. Ready? Go for it, and make sure you session with everyone. And quick information, this is my The Hindu class every day 8 a.m. Don't forget to watch. We discuss more than 30 errors, difficult vocabulary, summary of the article, title, tone of the article, RC based questions, spelling error, incorrect word usage, fill in the blanks, paragraph completion and many more. ये सारे टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्लास में होते हैं. So I hope आप स्टडी कर रहे होगे. Alright, and subscribe to our channel. Make sure you share, you talk about our channel, ठीक है, with all the students, especially those students जो परेशान होते हैं इंग्लिश में, पास नहीं हो पाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप उनको बता सकते हो. All right, and this is the information about our course, express video course. इसमें आपको 2 बार कोर्स कंप्लीट मिलेगा. One recorded and the other one is live classes. All right, go for it. So the first word is, today I have 15 words. It's a short video, and learn, memorize. I will share the PDF in our Telegram group. All right, IPS Guide, the official Telegram group. Confound. Confound is a verb. The parts of speech क्या इसका verb है? It means confuse हो जाना, perplexed हो जाना, परेशान हो जाना. Cause surprise, confusion in someone, especially by not according with their expectations. ठीक है, किसी ने आपसे ये एक्सपेक्टेशन करी लेकिन आपने कुछ और कर दिया, कंफ्यूज कर दिया. ठीक है, द इन्फ्लेशन फिगर कन्फाउंडेड इकोनॉमिक एनालिस्ट. अब जो इन्फ्लेशन हुआ हमारी कंट्री में और उसने जो इकोनॉमिक एनालिस्ट होते हैं, ओके, उनको कंफाउंड कर दिया, मीन सरप्राइज कर दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया. अमेज, एस्टोनिश, डम्बफाउंडेड. डम्बफाउंडेड का मतलब होता है कि सपोज अभी अचानक से मेरे सामने लाइन आ जाए, देयर इज अ टाइगर इन फ्रंट ऑफ मी 5 मीटर अवे, and I felt dumbfounded, confused. All right, mix up with something. Okay, he was forever confounding मैनरिज्म विद आइडियलिज्म. एक ऐसा पर्सन था जो मैनेजरिज्म को और आइडियलिज्म को हमेशा मिक्स अप कर देता था, कंफ्यूज कर देता था. क्लियर? कंफाउंड इज कंफ्यूजन. सेकंड, disseminate is a verb, and that means to spread the knowledge, any news, any information, okay, any quotation, anything that you share with others on a large scale. ठीक है, तो disseminate हो जाएगा. स्पेशली इंफॉर्मेशन, टू स्प्रेड और गिव आउट समथिंग, स्पेशली न्यूज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज उनको स्प्रेड करना. वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्स इज, क्या एम है? टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना. ब्रॉडकास्ट, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, प्रोपेगेट, स्प्रेड. डिसेमिनेशन मींस स्प्रेड. क्लियर? नाउ नंबर थर्ड, डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन मींस इज अ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट मींस to end something, the activity, put a full stop on something, the action of formally ending or dismissing an assembly. किसी सभा को एंड कर देना, पार्टनरशिप को, किसी एग्रीमेंट को, किसी पार्लियामेंट को, anything that exists on this universe, if you end it, that is dissolution. The dissolution of their marriage, marriage end हो गया, no longer legally valid. Cessation, CESSET means stop. कंक्लूजन, एंड, एंडिंग, फिनिश, टर्मिनेशन. टर्मिनेट कर देना, स्टॉप हो जाना. क्लियर? न्यू वर्ड फॉर यू. द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एंडिंग एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल. द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट रुक गई, स्टॉप हो गई. द डिसोल्यूशन ऑफ देयर मैरिज. क्लियर? नाउ EMPIRI से empirical, it's an adjective based on what is experienced or seen rather than theory. Means real, based on facts, based on evidence, something that is true, something tangible that you can see easily, that is empirical. Clear? Based on the facts, based on the experience, first hand experience. कहीं एक्सीडेंट हो गया, अपनी आंखों से आपने देखा,
तो इट्स अ रियलिटी, इट्स अ बेस्ड ऑन द एविडेंस, ठीक है, सीन, फैक्चुअल, एक्चुअल, वेरीफाइबल, जिसे फर्स्ट हैंड एक्सपेरिमेंटल। तो दिस थ्योरी नीड्स टू बी बैक्ड अप, इसको सपोर्ट करने की जरूरत है विद सॉलिड एम्पिरिकल डाटा या एविडेंस। मीन्स क्लियर, ऑलराइट, फैक्चुअल। Empirical studies show that the some forms of alternative medicines are extremely effective. Empirical studies, practical studies based on truth, based on the results experience or experiment. Clear? चलो, emulate means होता है to copy somebody, ठीक है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सेंसा, remember, so I'm emulating the Amitabh Bachchan, the great Amitabh Bachchan, his dialogue, I'm trying to copy him, I'm trying to imitate him. बाय द वे कैसा किया मैंने, कमेंट में बताना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट मिमिक्री, इट्स अबाउट कि डॉक्टर कलाम, इफ यू वांट टू इम्यूलेट डॉक्टर कलाम, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एंड यू परसिवरेंस। सो किसी मोटिवेशनल फिगर जो हमारे होते हैं, इंस्पिरेशनल फिगर होते हैं, उनको कॉपी करना, या किसी आर्टिस्ट को कॉपी करना, किसी की लाइफस्टाइल को कॉपी करना, मेरा पढ़ाने का तरीका है, आप उसे कॉपी करो। आपका डांस स्टाइल है, आई कैन इम्यूलेट दैट। क्लियर? इमीडिएट कॉपी, रिप्रोड्यूस, मिमिक, मिरर, इको, फॉलो। दे होप टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ अदर सॉफ्टवेयर कंपनीज। मेरी एक नई कंपनी है, आई वांट टू इम्यूलेट द सक्सेस ऑफ टीसीएस, इन्फोसिस, ऑलराइट, ओके, सो इम्यूलेट, कॉपी करना, इमिटेट करना। क्लियर? डिसोनेंस, डिसएग्रीमेंट, okay, disagreement, difference in opinion, a combination of sounds or musical notes that are not pleasant when heard together। तो इसका साउंड व म्यूजिक वाला मीनिंग भी होता है, मींस एक इस तरह के साउंड और म्यूजियम, आई मीन म्यूजिक, जो जो क्या है, एग्री नहीं कर रहा है, इट लुक्स ऑकवर्ड व्हेन यू लिसन टू इट। द जेरिन डिसोनेंस ऑफ कीन्स म्यूजिकल, ओके, स्कोर, द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड और म्यूजिकल नोट दैट आर नॉट प्लेजेंट व्हेन हर्ड टुगेदर, वो प्लेजेंट नहीं होता, अजीब सा होता है। द लैक ऑफ एग्रीमेंट, हार्मनी बिटवीन पीपल और थिंग्स, म्यूजिकल नोट्स के बीच में हार्मनी नहीं, एग्रीमेंट नहीं है, तो म्यूजिक अजीब सा लगेगा। ऐसे इधर टू पीपल, टू ऑर्गेनाइजेशन, टू ओके, टू पार्टीज, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, डिसोनेंस हो जाएगा। इनकॉन्ग्रुइटी, डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी, डिसएग्रीमेंट, टेंशन। क्लियर? तो इसको डिसएग्रीमेंट से याद रखना। नेक्स्ट, COGNT, कॉग्निट, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब होता है क्लियर, लॉजिकल, कन्विंसिंग। They put forward cogent argument for British membership, means logical argument, clear argument, and such argument which are convincing, जो आपको convince करते हैं कुछ करने के लिए। Convincing, compelling, strong, forceful, powerful, potent, potent means होता है powerful, और impotent means not powerful। तो cogent समझ में आ गया, logical, clear, strong, commensurate, ठीक है, COMMENSURATE, commensurate, that means कि proportional in size। 50 रुपए का अगर मैंने पोटैटो ली, 50, मैंने आपको 50 रुपए दिए, तो आपने भी मुझे 50 रुपए का कुछ सामान दे दिया, प्रोपोर्शनेटली, जितना दिया उतना लिया, समझ गया? तो वेदर इट्स मनी और वेदर इट्स एनी ऑब्जेक्ट, वॉट एवर, तो करस्पॉन्डिंग इन साइज और डिग्री, इन प्रपोर्शन। सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एज एंड एक्सपीरियंस, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, एज होगी, उस हिसाब से सैलरी प्रोपोर्शनेटली होगी। ठीक है? क्लियर? इक्विवेलेंट, करस्पॉन्डिंग, कंपेरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, कंपेंडियम। अच्छा, वन मोर थिंग, आउट ऑफ दिस 15 वर्ड्स आप कितना जानता था, जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि सर आई लर्न ऑल 15 वर्ड्स वर न्यू टू मी, और आई न्यू 5 वर्ड्स एंड दीज आर द वर्ड्स दैट आई न्यू एंड दीज आर द वर्ड दैट आर न्यू। ओके, तो मुझे जरूर बताना। तो कंपेंडियम क्या होता है? प्रीसाइज, कंसाइज, ब्रीफ होता है, समरी, तो क्या, ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव समरी, एन इनवैल्यूएबल कंपेंडियम ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में एक समरी इंफॉर्मेशन, कलेक्शन, कंपाइलेशन, एंथोलॉजी, ट्रेजरी, डाइजेस्ट, समरी, डाइजेस्ट का भी मतलब समरी होता है। एक मैगजीन आती है रीडर्स डाइजेस्ट, कभी पढ़ाई किसी ने, वेरी पॉपुलर, वेरी इंफॉर्मेटिव मैगजीन, आई थिंक अगर टॉप 5 मैगजीन वर्ल्ड में नाम लिया जाए जो इंफॉर्मेटिव हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, फिर एनी एज ग्रुप के लिए हैं, तो दैट इज वन ऑफ रीडर्स डाइजेस्ट, RD, जरूर सर्च करना, गूगल इट, रीडर्स डाइजेस्ट, RD। ऑलराइट, तो कंपेंडियम समझ गया, समरी।
ये मैंने आपको द हिंदू क्लास में पढ़ाया हुआ है। COMPLAISNT, कंप्लेसेंट का मतलब होता है जी हजूरी, जी नेताजी, जी नेताजी, नेताजी यू आर लुकिंग परफेक्ट, नेताजी यू लुक ऑसम, नेताजी जिंदाबाद। somebody who, sir, somebody who's ready to, okay, to follow you and whatever you do, whatever जो भी आप कहो उसको वो फॉलो करेंगे, ऐसा पर्सन। क्लियर? ओके, जस्ट ए मोमेंट। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। प्लीज रीड टेक्स्ट। हाँ, तो trying to please somebody, you know, some people around politicians, okay, or around us as well, if they have something, okay, like selfish motive, they will come to you and they will try to please you, आपको satisfy करने की कोशिश करेंगे and बटरिंग करने की कोशिश करेंगे। ओवरली पोलाइट होते हैं ये, समझ जाना कि ये कुछ ना कुछ मांगने वाला है, कुछ ना कुछ फेवर मांगने वाला है। जो ओवरली पोलाइट होते हैं, एक्स्ट्रा पोलाइट होते हैं। There are too many complacent doctors signing sick notes, willing, assenting, ACQUIESCT, acquiescent होता है a person who ready to do anything for you, all right, amenable, very friendly, extra friendly, buttering करने वाले लोग। DISTEND, it's a verb and डिस्टेंट का मतलब होता है कि जो स्वेलन हो जाती है, बॉडी का स्वेल हो जाना, पेट स्वेलन हो गया, चाहे वो किसी डिसीज की वजह से हो या किसी भी वजह से, तो स्वेलन होता है, टू स्वेल, सूजा हुआ, टू स्वेल एंड बिकम लार्ज स्पेशली बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, और वहां से फूल जाए, बड़ा हो जाए। ड्यूरिंग डाइजेशन शुगर में प्रोड्यूस व्हेन दैट डिस्टेंट द स्टमक, ओके। स्वेलिंग, ब्लोटिंग, बल्ज, बल्ज होता है जो पेट आगे निकल के आ गया। देयर इज अ बैग, और बैग में आप वाटरमेलन रख दो बहुत सारे, तो वो बल्ज हो जाएगा, ठीक है, इतना सा बैग इतना बड़ा हो जाता है, बल्ज उसे बोलते हैं। Many doctors use different liquids to distend the bladder, bladder को बढ़ाने के लिए, prior to your biopsy, थोड़ा उसको फुला देते हैं, swelling करा देते हैं। क्लियर? डिस्टेंड समझ गया, swelling होना। डिस्टिल, दिस वेरी इजी वर्ड। पानी की जो डिस्टिलिंग होता है, पानी को क्लीन करना और प्योरीफाई करना, रिफाइन करना, फिल्टर करना, वाटर ट्रीटमेंट होता है। सब्लाइम, सब्लिमेट, okay, fractionate. So to make a liquid stronger, purer by heating it until it changes to a gas, then cooling it so that it changes back into liquid. Purification जो करते हैं, distill water. All right. CONDON, condone. That means होता है to forgive somebody and even though they are wrong. किसी का गलत बिहेवियर को आप माफ कर दो। घर में एक माँ होती है और उसका बच्चा क्रिमिनल है या बदतमीजी करके आया बाहर, एंड उसकी माँ उसे माफ कर दिया कि नहीं बेटा, तो कोई बात नहीं, बेटा है तो छोटा बच्चा है, समझ गए। सो टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग, वेदर इट्स गवर्नमेंट, सोसाइटी और मदर, हर कोई जो किसी गलत बिहेवियर को प्रमोट करता है और गलत बिहेवियर को माफ कर देता है तो उसे कॉन्डन बोलते हैं। इफ द गवर्नमेंट इज सीन टू कॉन्डन वायलेंस, अगर गवर्नमेंट वायलेंस को करने वालों को माफ कर देगा, वायलेंस को बोलेगा कि इट्स ओके, हो गया, द ब्लड शेड विल नेवर स्टॉप। तो ये जो ब्लड शेड, जो खून की नदियां बह रही हैं, वो कभी नहीं रुकेगा अगर गवर्नमेंट वायलेंस को माफ कर देगी। अगर वायलेंस को इनकरेज करेगी या वायलेंस के लिए किसी को पनिशमेंट नहीं करेगा तो ब्लड सेल विल कंटिन्यू। तो फॉरगिव, गिव टैसिट अप्रूवल, ओके, एक्सक्यूज, मतलब अनविलिंगली, विदाउट मच इंटरेस्ट आप किसी को माफ कर दो, ठीक है। एक्सेप्ट बिहेवियर दैट इज कंसिडर्ड मोरली रॉन्ग और ऑफेंसिव। The college cannot condone any behavior that involves illicit drugs. ये जो इलीगल ड्रग्स, आप जो इलीगल ड्रग्स जो कॉलेज में चल रहा है, ठीक है, उस बिहेवियर को माफ नहीं किया जाएगा। द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर, किसी बिहेवियर को माफ नहीं कर सकते। ऑलराइट, एंडेमिक और पैंडेमिक तो आप समझते ही हो, ठीक है। कोरोना अभी तो पैंडेमिक चल ही रहा है, तो पैंडेमिक, PAN इज द रूट वर्ड हियर, और पैन मीन्स ऑल ओवर, एवरीवेयर, ओके। तो पैंडेमिक मतलब अब डिसीज जो हर जगह फैल जाती है, और एंडेमिक इज अ डिसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन, कंट्री, पर्टिकुलर मोहल्ला, पर्टिकुलर गली में फैलती है, ओके, स्पेसिफिक रीजन में। तो लिमिटेड एरिया में डिसीज फैलती है एंडेमिक, ऑन अ लार्ज स्केल अगर कोई बीमारी फैलता है, दैट इज पैंडेमिक। Species of disease, a condition regularly found in and very common among a particular group or in a particular area. Particular area, this. On a larger area, pandemic. So malaria is endemic in many of the hotter regions of the world. Okay, and the last. So guys,
ओके, लेट्स फर्स्ट डिस्कस दिस वन, इनर वेट। इनर वेट मीन्स होता है टू मेक, टू वीकन समथिंग, कमजोर कर देना। फीवल, फीवल लिखा ही होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं पर, नहीं तो बता देता हूँ, FEEBLE। फीवल मीन्स कमजोर कर देना, टू वीकन, WAKEN, राइट। टू मेक समवन फील वीक और विदाउट एनर्जी, इनर वेट। फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटलिटी, मतलब कोई पावर ही नहीं बची आपके अंदर। ओके, एग्जॉस्ट है, यू आर टायर, यू आर फटीग्ड। ओके, वियर आउट मीन्स बिल्कुल टायर, डिवाइटलाइज, ड्रेन्ड, आपके अंदर से एनर्जी सारी निकल गई है। तो इनोवेट मीन्स लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ पावर, यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड। ओके, फीबल मीन्स में होता है कमजोर कर देना। Okay guys, so these were the 15 words. I hope you enjoy the video, and I will if you want me to continue to make such videos, please leave a comment, and if you like the video, hit like button and share with everyone. If you are the new person watching this video, subscribe to our channel Guidely, and see you in the next video. Okay, like, share and subscribe. All the best.